Hello guys, welcome to Aditya Financial Insights. In this video, I will tell you about the chapter number 2, Understanding the Index. तो गाइस देख सकते हैं इसमें हम चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इस वीडियो में पढ़ने के बाद आपको इतना चीज बारे में जानकारी होगा जैसे इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट, देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, मार्केट इंडाइसेस, इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गाइस इस लेक्चर में हम आपको इतना चीज जानकारी मिलेगा आप पूरा पढ़ने के बाद। तो शुरुआत करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडेक्सेशन। इंडेक्स इंडेक्स का इंट्रोडक्शन मतलब इंडेक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसमें देखते हैं। इंडेक्स इज एन स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर मेजर चेंज इन इकोनॉमिक इन जनरल एसोसिएटेड एरिया इन केस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंडेक्स पोर्टफोलियो। Index is a portfolio security that represent particular market or portion of market. So basically, each index has to one calculation methodology usually expressing the term of change from base value. So basically, each index has a one calculation methodology usually expressing term change value from a base value. ठीक है guys? This base value might be an instant previous day or many years in the past. जैसे इंडेक्सेशन में चलता डेली बेसिस, मंथली बेसिस का, तो उसी बेसिस का। Thus the percentage change is more important than actual numerical value. इसमें जो भी होता है परसेंटेज चेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, देख सकते हैं। Financial indices are created to measure price movement of stock, price movement, stock, bond, T-bill, other types of financial security. More specifically, a stocks index is created to provide market participants with the information regarding the average share price movement in the market. Broad indices are expected to capture overall behavior of the equity market and need to represent the return obtained by typically portfolio in the country. ठीक है, देख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉक इंडेक्स, सिग्निफिकेंस इसका स्टॉक इंडेक्स का क्या प्रभाव मान लो है। A stock index is an indicator of performance of overall market in particular sector. इसमें गाइस देख सकते हैं ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये हर एक सेक्टर का एक इंडेक्स होता है। उसमें एक पैरामीटर होता है जिसमें से किसी भी इंडेक्स में किसी भी शेयर को जानने के लिए उसके एक निश्चित अवधि तक उसको बेस्ट परफॉर्मेंस करना होता है। जैसे निफ्टी 50 है गाइस, तो निफ्टी 50 में आपको टोटल टॉप 50 कंपनी को एंट्री मिलता है। अगर वो नहीं उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन होता है, वो आगे की तरफ serves as a benchmark of portfolio performance. Manage portfolio belonging either to individual mutual fund, use the stocks index and measure for the evaluation their performance. It is used as an underlying for financial application observative. Various products in the OTC and exchange trade markets are based in indices as the underlying basis. टाइप्स ऑफ मार्केट इंडाइसेस, तो कितने प्रकार के मार्केट इंडाइसेस होता है जैसे कि देख सकते हैं। इंडाइसेस कैन बी आई एंड कॉन्स्टेंट इन वेरियस वे डिपेंडिंग अपॉन देयर मेथोडोलॉजी एंड केमिकल प्रोसेस। जैसे कि आपको पहले बताया था तो बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेट इंडेक्स, कैपिटल के आधार पर जितना उसकी वॉल्यूम हो, उसकी पार्टिसिपेशन हो, जैसे देख सकते हैं। Method of calculation each stock is given weight according to its market capitalization. So higher the market capitalization of constituents, higher is weight in the indexes. This big company का market capitalization ज़्यादा और सभी ज़्यादा होगा। Market capitalization is the market value of a company. The operator and multiply total number of shares outstanding to current market price. Example, कोई ABC कंपनी जिसके 5 लाख शेयर है, ठीक है, 5 लाख, 5 जैसे 5 करोड़
है। शेयर आउटस्टैंडिंग एंड शेयर प्राइस 120 रुपया है पर शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्च क्लोज में 120 लगभग में आ जाएगा आपका 2.5 1 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 6 अरब 10 करोड़। Let's understand the concept. Help by example. There are five stock in indexes. Base value indexes set index on the start date. एक जनवरी 1995 calculated the current value index based on the following information. जैसे का ये अलग अलग स्टॉक्स का नाम होगा। ठीक। 1 जनवरी 1995 की सबकी प्राइस देख सकते हैं। कंपनी ए का 150, कंपनी बी का 300, कंपनी सी का 400, कंपनी डी का 100 एंड इस तरह का नंबर ऑफ शेयर देख सकते हैं। इसका 20 लाख है, 12 लाख, 16 लाख, 23 लाख, 8 लाख है। ठीक। जो टोटल स्टॉक प्राइस देख सकते हैं। इसका 650, इसका 450, इसका 400, 350 एंड 500। ठीक है। टोटल टुडे प्राइस है। ये हो गया 1995 के अनुसार और दूसरे अरे इतने दिनों के बाद जिसे पढ़ लिया। ठीक। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1950 से 18,800 का था। ठीक। टोटल वैल्यू जोड़ें तो 1 जनवरी इंडेक्सेशन का 1 जनवरी 1995 से 18,000 था। तो कुछ दिन का मार्केट कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाई गुना हो गया, मतलब कई गुना बढ़ गया। ठीक। शेयर इस स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, जिसके कारण धीरे से उसका गाड़ी की कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस स्टॉक इंक्रीज फ्रॉम 18,000 to 12,500। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन जनवरी 95 equated to 100। The new value of the index calculated 42,500 लाख by 18,800 लाख into 100 which worked out 226.06। Since the index has risen from base 100 to a new value 226, the change in the index value is 126.06%। ठीक है guys? तो ये हम इसके आगे देखते हैं। ये ओल्ड प्राइस था अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी जिस तरह देख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर वही है। ओल्ड मार्केट कैप सबको गुना कर दिए, डायरेक्ट पता चल गया। टोटल हो गया 18,800 का। और सबका वेटेज भी देख लीजिए 0.16, 0.19, 0.38 इस तरह का होगा। अब आया था न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस गाइस इसको ये बढ़ गया। ठीक। 6,000, 650, 450 के न्यू प्राइस बढ़ने के बाद मार्केट कैपिटल और बढ़ जाएगा। ठीक। जब इसको हम टोटल से गुना करेंगे तो देख सकते हैं तो न्यू वेट आपका सीधे दुगना से लगभग हो रहा है। तो ये वाला इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन मेथड एज ए वेट कैपिटलाइजेशन। ठीक। पॉपुलर इंडेक्सेशन इन इंडिया सेंसेक्स हो गया, तो जानते हैं अभी निफ्टी, ये दो फेमस है। early design on the market capitalization better method और भी बहुत सारे हैं। ठीक। निफ्टी नेक्स्ट है, निफ्टी 50 है। ठीक है। तो ये फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, इसमें भी फ्री फ्लोट होता है। इसमें कोई एक शेयर पर डिपेंड नहीं रहता, बहुत सारे कंपनी निफ्टी में 50 कंपनी के शेयर पर डिपेंड करता है, तो उसकी ग्रोथ ज्यादा भी होती है। इन वेरियस बिजनेस इक्विटी होल्डिंग इज डिवाइडेड different among the various stakeholder, promoter, institutional, corporate, individual. Market has started to segregate on the basis of what is readily available for the trading, what is not. The only available for the immediate trading is characterized free float. And if you compute the index based on weight of each security based free float market cap, it is called free float market capitalization index। ठीक है। A majority of the stock indexes globally over a period of time have moved to free float basis, including the Indian equity indices, Sensex, Nifty, and SX 40। Price weighted indices, price से बेस होता है। तो देख सकते हैं this is a stock index which is a stock influence index indexing for proportion to price। A stock with a higher price will be given more weightage, therefore will be greater influence over the performance of index। प्राइस वेटेज इंडेक्स में गाइस किस कंपनी का प्राइस ज्यादा बढ़ेगा उसके बेसिस पर
इसे रखा जाता है। जिसे देख सकते हैं ये कुछ एग्जाम्पल प्राइस वेटेड इंडेक्स कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो इसमें 5 कंपनी है, 5 कंपनी के नाम देख सकते हैं। एक जनवरी 1995 का प्राइस कितना था, नंबर ऑफ शेयर है, पूरे प्राइस देख सकते हैं सीधे कितना हो गया, मतलब बढ़ता गया। तो सबसे ज्यादा जिस कंपनी है बड़ा है, सी का बड़ा देख सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ, ये इम्पोर्टेंट होगा गाइस, इसको जरूर याद रखिएगा। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस वेटेड इंडेक्स, जैसे प्राइस इंडेक्स से इक्वल टू होता है, देख सकते हैं प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द प्राइस ऑफ द टू इंडेक्स। इसमें टोटल 18,000 आपके है, मेन नंबर ऑफ स्टॉक्स इन इंडेक्स है टोटल। एक जनवरी 1995 सबको जोड़ देते हैं, वो तो टोटल था, ठीक है। ये टोटल को जोड़ के अब भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा 250 हमारा प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं, करेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज द सम ऑफ द करेंट प्राइस ऑफ ऑल ऑफ स्टॉक इंक्लूड द इंडेक्स डिविडेंड divided by the number of stocks. The current currency जैसे जोड़ देते हैं, सबको भाग बोल देते हैं। That the increase in the value of index 510 minus 250, तो जिसमें देख सकते हैं गाइस 510 में 250 कम कर देंगे तो लगभग में टोटल अब भागा देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो लगभग में देख सकते हैं 104% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है प्राइस इंडेक्स में, ठीक। इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी का टोटल ये 12,510 हो गया, ठीक। वेटेज देख सकते हैं 0.12, 0.24, 0.36, 0.08, ये टोटल एक हो गया। करेंट प्राइस टोटल का देखिए परसेंटेज चेंज 150 से 650 आ गया, 3 गुना हो गया सीधे, ठीक। इसको देख सकते हैं सीधे 50 गुना हो गया। इसको क्रेडिट 1/3% इंक्रीज हुआ, इंडेक्स में 2.5%, 250%, ये हो गया 100%। तो इस तरह का परसेंटेज चेंज हो गया। फिर जब इसी को परसेंटेज चेंज प्राइस वेटेज के रूप में करें तो इसी वेट से गुना कर देते हैं, ठीक। समझ गए, ये 40% हो गया। अब इसको हम करते हैं, इसको गुना कर देंगे टोटल का, ये 12% हो गया, ये भी 12%, ये भी 20%, ये भी 20%। परसेंटेज चेंज प्राइस इंटू वेटेज, बस फिर से इसको गुना कर देना गाइस। तो डॉन जॉन इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निकल 225 पॉपुलर प्राइस वेटेज इंडेक्स, जैसे कि यूएसए मार्केट में डॉन जॉन काम करता है और निक है ये जापान का है, ये दोनों प्राइस वेटेज इंडेक्सेस है, ठीक है। और यहाँ तीसरा नंबर में इक्वल वेटेज इंडेक्स, ये इक्वल प्रोपोर्शन, किसी भी कंपनी का इक्वल हिस्सेदारी होता है। इक्वल वेटेज इंडेक्स इज वन which all of the include the index have the same weighted, मतलब किसी भी कंपनी का क्या प्राइस है उसको कोई मतलब नहीं, जो उसका वेट होगा एक निश्चित रेशियो होगा। द नंबर ऑफ शेयर of each stock is adjusted in such a way that weighted of each stock is same, कहते हैं if there is any change in the market price of the each stock, the weighted of each stock will be changed to maintain same equal weight as earlier. Fund manager need to sell those stocks that have increased in price and buy the stock of the falling in price, ठीक है। चीज कर देते हैं एग्जाम्पल इक्वली वेटेड कंप्यूटर। तो जैसे इसमें ही 5 कंपनी है, 4 कंपनी है, सबका प्राइस 1 जनवरी 1995 देख सकते हैं। फिर वही क्वांटिटी देख सकते हैं, इसका 300, इसका 200, 400, इसकी टोटल वैल्यू हो गया, उसको गुना कर दीजिए, इतना टोटल लगभग 1,20,000, ठीक। देन वेट सबका 1/4, 1/4, टोटल 1 हो गया। फिर करेंट प्राइस 10 रुपये का 100 से 150 हो गया, फिर करेंट वैल्यू, ठीक, इसकी बढ़ गई, जैसे पहले 3 था 45 हो गया, जैसे 1,46,000 हो गया टोटल। प्राइस चेंज डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इससे निकला है टोटल 50% बढ़ा है, 13% कमी आई, यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ा, तो 18 टोटल 60% है, देख सकते हैं यहाँ नोटिस प्राइस जबरदस्त गिर हुई है। तो प्राइस चेंज ओल्ड वेटेड, प्राइस जितना चेंज हुआ उसमें ओल्ड वेट गुना कर देते हैं,
तो ऑलवेज ये हुए इस तरह का राइस और इंटू ओल्ड वेटेड, ठीक है। तो इस तरह का रहा। और हम देखते हैं इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये 1 जनवरी 1995 चार स्टॉक के बारे में थी, तो हम लोग पूरा डिटेल देख लिया। प्राइस वेटेड वाइज निकलता है टोटल वेट वाइज, टोटल जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू वैल्यू करेंट वैल्यू बाई ओल्ड वैल्यू टू 100, ये टोटल परसेंटेज निकलता है, जिसमें देख सकते हैं 27.67% की ग्रोथ देखते हुआ है। इसको परसेंटेज निकालें तो 100 से गुना भी करते हैं, अगर देते हैं तो 21.67%। originally weighted each stock with equal to right 21.67%, ठीक है। तो इस प्रकार का चेंजेस इन प्राइस स्टॉक पी एंड आर है weighted greater than 25%, while the stock Q and S है weighted lower than 25. The fund manager will then have to rebalance index ratio equal weighted. This can done by the selling appropriate quantity of the stock P and R by required to cut stock Q and S. तो इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, तो एवरेज आया है 21.67, तो 21.67 से नीचे जो है इसको बेचा जाएगा, फिर नया ऐड किया जाएगा। तो इस तरह का होगा। अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स। एट्रीब्यूट्स, इसका क्या प्रभाव, ठीक है। तो देख सकते हैं a good market index should have following attributes. It should reflect the market behavior. It should computed by the independent third party and free from influence of the any market participants. It should be professionally maintained. Impact of cost, cost का impact क्या होगा इसको देखते हैं। जैसे cost का impact liquidity पर सबसे पहले बताया जाए। The liquidity in the context of a stock market means market where the large order is executed without moving the price. अगर लिक्विडिटी इसमें कम आ जाए तो समझिए उसमें बहुत कम होगा। Let's understand this will help of an example। और बुक ऑफ स्टॉक पॉइंट नफा, जैसे देख सकते हैं कोई बाई किया 1022, 1022, 2021, प्राइस जिसमें 4 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया, और फिर प्राइस बढ़ने के बाद देख सकते हैं 4 रुपये 50 पैसे, इतना बढ़ने के बाद किया, और फिर कोई टाइम क्वांटिटी देख सकते हैं सेल, सेल में 2000 है, 100 है, 500 है, 100 है। अगर बाई जितना सेल में लगा हुआ उतना ही बाई कोई कर पाएगा, ठीक है। आप प्राइस गुना कर सकते हैं, अगर जैसे कि 100 कर देती है 4 रुपये पर पाएगा, तो 4000 का आइडिया देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं टोटल 450 आएगा 2000, 50 45 90 है, ये बाई हो जाएगा, ठीक। इससे अगर इससे कम रहेगा, सेल से ज्यादा कम होगा बाई, जो रहती वो बाई हो जाएगा। इस तरह का गाइस ऑर्डर बुक गिवन फॉर बाई ऑर्डर है सेल ऑर्डर, अगर मैच नहीं होगी तो कभी नहीं होगी, उसे लगा रहेगा ऑर्डर में। डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट बाई एंड बेस्ट सेलिंग ऑर्डर 0.05 फॉर बिड स्टेक प्राइस, ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये बिड स्टेक प्राइस एक्सप्लेन वैल्यू होता है। A person place market buy order and if would we match against the best available seller 4.50, he would buy 100 share for 4.50. Similarly, if the place a market sell order 100 share, it will be matched against the best available buy order for 4 and share will be sold at 4. Hence, if a person buy 100 share and sell them immediately, he is a he is a poor by the bid-ask price allows 15, and this spread is regarded as a transaction cost which market charges for the privilege of the trading transactions as handled. Now suppose person want to buy and sell 3000 shares, the sell order will hit current order। जैसे कि गाइस कोई 1000 क्वांटिटी लगाया तीन तरह का, ठीक। एक 4 रुपया का है, 3 15 पैसा है, 3 80 पैसा का, ये है। while the buy order will be hit, इसमें देख सकते हैं 2000 क्वांटिटी 4 रुपये 50 पैसा का, 1000 क्वांटिटी 4.50% का सीरियल नंबर होता है, जिसका पहले लगा उसका पहले लिखिएगा या थर्ड आएगा, देख सकते हैं।
This is an increase in transaction cost of an order size 3000 share in comparison to the transaction cost of order 1 share. The bid ask spread therefore convey the transaction cost of a small share. तो देख सकते हैं guys. अब आ जाते हैं next. Now we can across term called impact cost. We must start by the defining ideal price, the average of the best rate of a price. In our example, 4 plus 4, 4 plus 4.50 by 2, 4.25 in an infinitely liquid market. It would be possible to immediate large transaction on the board by a sell price very close to the ideal price 4.25. जैसे गाइस को लगाया 4 रुपया 25 पैसा पर और मार्केट में अवेलेबल है 4 रुपया 50 पैसा 4 रुपया 25 पैसा श्योरिटी वो बाय या सेल हो जाएगा while the trading you will pay more for to 5% while the buying will receive less than 4.25 share will be selling the percentage degradation which is experienced by the ideal price when the share bought or sold for the impact cost. Impact cost vary with the transaction size as it would be different for the buy and sell side. जैसे देख सकते हैं बाय प्राइस लगा हुआ 1000 क्वांटिटी 9 रुपया 80 पैसा पर 2000 क्वांटिटी 9 रुपया 70 पैसा पर एंड 3000 क्वांटिटी 9 रुपया 60 पैसा पर वही सेलिंग क्वांटिटी देख सकते हैं गाइस 9 रुपया 90 पैसा पर 1000 क्वांटिटी है 9 रुपया 90 पैसा पर 1000 क्वांटिटी है तो ये खड़ा जाएगा बाई इसमें देख सकते हैं 10 रुपया पर लगा हुआ है 1500 ये 2000 लगा हुआ है 9 रुपया 70 पैसा पर तो देख सकते हैं तो ये हो गया 15 मतलब नहीं खरीदाएगा जिससे देख सकते हैं ये हो गया 25 28 ये हो गया टोटल देख सकते हैं तो ये भी नहीं खरीदाएगा इसका तो बाय टोटल 1500 शेयर आइडियल प्राइस 9.8 इंटू 9.9 ठीक दोनों को गुना कर दें फिर 200 भागा दे दें टोटल एवरेज रहेगा 9.85 टोटल 1500 शेयर खरीदाएगा ठीक एक्चुअल बाय प्राइस 1000 बोले 9.9 प्लस 500 इंटू 10 टोटल बाय 1500 तो टोटल देख सकते हैं एवरेज 9.9 एंड impact cost for the 1500 share is equal to 9.933 is average है एक्चुअल बाय प्राइस में माइनस 9.85 9.85 ठीक से गुना कर देंगे फिर तो टोटल इंटू 0.84 हो जाएगा इम्पैक्ट कॉस्ट ठीक है इम्पैक्ट कॉस्ट हो जाएगा all price current price minus all price minus current price गुना कर देंगे all price गुना कर देंगे इंटू 100 ये इम्पैक्ट कॉस्ट हो जाएगा गाइस आ जाते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट में इंडेक्स कंस्ट्रक्शन maintenance and reverse process is generally done by a specialized agency. For instance, DAC indices are managed by the Asia Index Security, NEC indices are managed by Asia Index Limited. Index construction is all about the choosing the index stock and detecting on the index calculation methodology. Maintenance means adjusting the index for corporate action like bonus issue, right issue, stock split, consolidation, merger, revision of an indexation. This with the changes in the composition of index such as replacing some existing stocks by the new ones because of a change in trading paradigm of the stock shift internet participation. अब देख सकते हैं इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में देखते हैं ए गुड इंडेक्स इज ट्रेड ऑफ बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी किसी भी index assessment diversification and liquidity mean important. A well-diverse index reflects the behavior of the overall market by economy, while a diversification with reducing risk. Diversification हमेशा रिस्क से बचाने के लिए किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के शेयर का इट में never beyond the point going from 10 stock to 20 stock lead to the sharp reduction rise. Going from 50 stock to 100 stock enable very little reduction risk. Going beyond the 100 stock almost zero decline risk. Hence there is a little gain diversifying beyond the point. जैसे कि जब हम 50 शेयर का लेते हैं उसमें
रिस्क थोड़ा और कम होगा। अगर वो 100 शेयर की ओर जाते हैं तो उसमें रिस्क और कम होगा। यदि 100 से बाहर की ओर जाते हैं तो उसमें रिस्क और जीरो हो जाएगा। ये इंडेक्सेशन कंस्ट्रक्शन बताया गया। डाइवर्सिफिकेशन इसमें होता है। कम शेयर का अगर बंच रहेगा उसमें ज्यादा लॉस होगा। Stocks in the indexes are chosen based on certain predetermined quantitative parameter laid down by index construction manager. Once a stock satisfies eligible criteria and entitled for the inclusion index, generally in the final decision includes removal of security from the indexes is taken by the specialized committee known as index committee. ठीक है, index maintenance and index revision. Maintenance and revision of the indices. Maintenance and revision of the indices is done with the help of various mathematical formulas. जैसे कि देख सकते हैं, index comparable across index needs to take into account all corporate action, stock split, share issue, dividends, and restriction event. Which while the index maintenance issue gets triggered by the corporate action, index revision is a continuous exercise to ensure the index captures most vibrant lot of security market and continuous growth. ये गाइस हमेशा 4 मंथ या 5 मंथ के बाद इसमें रिकंस्ट्रक्ट होते रहता है। कोई शेयर अंदर आती है तो कोई शेयर बाहर जाती है। इसका क्या भी लेते लेते देख याद पता होगा कि जोमेटो अभी एपी 50 के इंडेक्स में एंट्री मिला है। मेजर इंडेक्स इन इंडिया S&P BSE X निफ्टी BSE सेंसेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये टॉप 100 शेयर का, टॉप 200 से टॉप 500 का है। निफ्टी भी उसी तरह जिसमें देखो ये कुछ टॉप इक्विटी इंडेक्सेस है। वो एप्लीकेशन में रहता है, एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्सेस। इसका उपयोग क्या है? ट्रेडिशनली इंडेक्सेस में वेरी यूज एज a measure of understanding overall direction of the stock market. However, the few applications have merged in the investment field while the explanation index fund. These types of funds invest in a specific index with an objective to generate return, equivalent return on index. These funds invest in Indian stocks to perform in the which stock is indexation. For instance, Sensex index would get similar return as the Sensex index except for a small tracking error, while the others due to fund management related to expansion, cash holding, maintained to take care of redemption. Index Sensex has 30 shares. The fund will also invest in these 30 companies in the proportion in which exists in the Sensex. Similarly, Nifty Index Fund would invest 50 component company of the Nifty Index same proportion in the which they exist. Nifty Index therefore generate similar return as the Nifty Index. तो ये गाइस इसमें बताया गया कि जो भी शेयर अगर निफ्टी में है तो अगर उसमें उसको जो भी इसके फंड मैनेजर होते हैं या निफ्टी 50 में जितने इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको हर एक शेयर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर गाइस अब आ जाता है इंडेक्स डेरिवेटिव। Index derivatives are derivative contracts which have index as the underlying index. Index option and index future are the most popular derivative contracts worldwide. देख सकते हैं ये इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर बहुत ही फेमस होता है वर्ल्ड वाइड में। इंडेक्स डेरिवेटिव आर यूजफुल एज ए टूल ऑफ हेजिंग अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। इंडेक्स डेरिवेटिव हमेशा जब मार्केट नीचे की ओर गिरता है तो उससे रिस्क मैनेजमेंट के लिए हेज फंड यूज करते हैं। एक्सचेंज ट्रेड फंड Exchange Trade Fund ETF is a basket of security that they like individual stock on the exchange. They have a number of advantages over the mutual funds as they can be bought and sold on the exchange. Since ETF are traded on exchange, intraday transaction is possible, but the ETF can be used as a basket trading in the term of a smaller domination and low transaction cost. ठीक है, तो आ जाते हैं कुछ सैंपल यहाँ पर। Set whether the true or false. Impact cost is low when the liquidity in the system is poor. No. लिक्विडिटी कम होगा तो इम्पैक्ट कॉस्ट भी कम होगा। इम्पैक्ट कॉस्ट कम होगा तो लिक्विडिटी ज्यादा होगा। तो गाइस ये ये सही होगा।
Which of the following cost is not extra paid by the market participants but arise due to lack of liquidity? Security transaction impact cost, SEBI charge and broker charge. Impact cost होता है guys, जैसे इसमें क्या बोला, cost not actually paid by the market participant. Impact cost हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट को नहीं देने का था, लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण। ट्रांजेक्शन चार्ज हम लोग देते हैं, सेविंग चार्ज भी देते हैं, ब्रोकर चार्ज भी देते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट ये फंड मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था एज ए सैंपल की तरह से। तो थैंक यू गाइस, लेटेस्ट वीडियो में समझने के लिए और इतने साथ जुड़े रहें। और ये हमारा सेकेंड चैप्टर था। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करें अगले वीडियो में। तो थैंक यू गाइस, इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।